कैसे हो? वेलकम फ्रॉम सीखो सिंपली. So today we are going to continue our next class. In the last class we have covered the topic of solubility. So I am mentioning it here. You can find it in the previous class. Cover the Henry's law, the application of Henry's law, and some questions based on Henry's law. So if I make a short revision of the last lecture in the Henry's law, what we have done so far here, that in the Henry's law we have learned that P is equal to KH into X, where P is the partial pressure of gas over the solution, right? हमने यही पढ़ा था, partial pressure of gas over the solution. I'm writing it over the solution. KH is the Henry's constant. There KH is the Henry's constant and X represents your mole fraction. So in this what we have learned, like पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के. जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी गैस का किसी भी मिक्सचर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा. दैट वाज गिवन बाय हेनरी एंड thus termed as Henry's law. So P is equal to KH into X. So we can study this with the help of book also. So let's come into the book. So in the book we have this term written over here. If you see it, the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution. Right? Mole fraction किसी भी गैस का directly proportional होता है किसके? Partial pressure के. Again the same thing just we had written. So P is directly proportional to what? X. Therefore the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction. इसलिए हम इसको ऐसा mention करते हैं as it is. Thus we have P is equal to KH into X. And you can remember it like it can be written as y equal to mx, which is a equation of a straight line where m is the slope. So in this reaction you can see here you have partial pressure and on the x-axis you have mole fraction and it representing what? Slope, that is the KH, right? This is like mathematical representation of this equation. So next thing we're going to learn about the Henry's law application. So Henry's law have three application. Application number 1, 2 and 3. First application is in CO2 soft drinks. This we had covered in the last section. We can see it. Then in the applications we have like we learn here the application of soft drink. Application of Henry's law. So in the application of Henry's law we have learned first thing on the soft drink. So इसका क्या application था? Soft drink के अंदर ज़्यादा कब गैस dissolve होगी? In this we have learned about dissolution of gas in liquid, right? So dissolution किसका होना चाहिए? गैस का in liquids. Okay? So गैस को लिक्विड में मिक्स करने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी? टेम्परेचर शुड बी लो, temperature should be as low as possible and pressure should be as high as possible. This we had learned in the last section, right? The second explanation of the application of Henry's law is about the scuba divers. So what happens with the scuba divers? So underwater, when they go underwater, so if you see underwater the pressure of water is really high. So pressure बहुत ज़्यादा होगा and when they come on the surface, जब scuba divers यहाँ से तैराक वापस ऊपर आके surface पर आते हैं तो pressure gradually decrease हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो concentrated gas, जो dissolved gases हैं वो change हो जाएंगी and thus it causes a problem, और फिर ये problem cause कर सकता है. It is written over here, scuba diver must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure under water. तो उसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से हमारी ब्लड के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं. सो व्हेन द डाइवर्स कम ऑन द सरफेस, सो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा. So this releases dissolved gases and lead to the formation of bubbles. अब जैसे हम सरफेस पर आएंगे so प्रेशर डिक्रीज हो गया
तो हमारा क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स इन द ब्लड and thus it can block all capillaries and this condition is known as bends and which is very painful and dangerous to our life. So that is the second application of scuba diver. तो यहाँ पे application में तो इन सब चीज़ों को prevent करने के लिए what we do, so we change the concentration. जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर concentration को change करते हैं. तो concentration is typically like 11.7% हीलियम, तो आपको पता है हीलियम 12% ही होता है. नाइट्रोजन 70% की जगह हम रखते हैं 56% एंड ऑक्सीजन 32.1%. So this is the condition. You need to learn the percentage of that. Sometimes it is asked in the exams. Okay. Next thing. So इसका next application learn करते हैं. In the next application you have seen people living on the high altitudes. I mean जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है. So at high altitudes pressure हमारा क्या होता है, कम होता है as compared to the ground level. So pressure कम होगा, so उसके अंदर according to Henry's law प्रेशर जितना कम होगा so मोल फ्रैक्शन भी उतना कम होगा. इसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर में कम होगा. So due to which what happens, they lead to the low concentration of oxygen in the blood. तो जितने भी लोग पहाड़ पर रहते हैं मोस्टली उनके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम जाता है. दे कैन लिव इन स्मॉल मीन्स लेस ऑक्सीजन कंटेंट में रहते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग ऑन द ग्राउंड लेवल. सो इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल living at high altitudes or climbers, low blood oxygen cause climbers to become weak, जिसकी वजह से वो weak हो जाते हैं and they are unable to think properly or clearly. This symptom is known as anoxia. You must have seen जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं they are mostly बोने होते हैं because of this reason only, because उनके पास complete oxygen का supply नहीं होता है. That is the application. So in this video we have covered the three applications of Henry's law. The first was on the soft drink, second on the scuba diver, and third one on the, if you see the third one we have covered for people living at high altitude, right? Write it here, at high altitudes. So that is the point number 3. So this was about the Henry's law and its application. Now we'll discuss some numericals on the Henry's law. So इसके कुछ numericals discuss करते हैं Henry's law में. तो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में. सो व्हाट विल डू, विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो आई कम टू द बुक हियर, उसके अंदर देखते हैं. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 2.6 एंड क्वेश्चन नंबर 2.7. सो विल कवर देम वन बाय वन. दोनों को देखते हैं क्या आगे इसमें करना है. तो फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2.6. H2S gas with rotten egg-like smell is used for the quantitative analysis. Okay, if the solubility of the H2S in water at STP is 0.195 m, calculate the Henry's law constant. Okay, so यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिया है calculate Henry's law constant. तो this clears कि that this question is based on Henry's law. सो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या दिया है, H2S गैस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है. इट मींस इट इज गैस इन लिक्विड वाला कंसेप्ट है. सो गैस इन लिक्विड के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं हम, अगेन इट इज गिविंग दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ. ये दोबारा हेनरीज लॉ पर बेस्ड है. एंड इफ यू सी हियर द इंपॉर्टेंट लाइन इन द क्वेश्चन गिवन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 0.195 m. So if you have seen my previous lectures, उसके अंदर आपने देखा होगा we have discussed about the molarity, some terms regarding concentration and composition of chemicals. कैसे हम उनको measure करते हैं, उनका measurement concentration के terms में. So we start this question. I write this question here. You can see this is question number 2.6. So in this question we are given like, I'm seeing the question again. You are given solubility of H2S in water
solubility of H2S in water at STP is 0.195. At STP is 0.195 m. So what is the meaning of m there? M represents what? Molality. Remember it, m represent क्या करता है आपका? Molality को represent करता है. And STP का मतलब होता है Standard Temperature Pressure. So Standard Temperature Pressure पे आपने 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा होगा. So those who are in 12th class, so they must have seen the term called STP in 11th class, states of matter, right? So STP का मतलब होता है ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है जिसके कंसंट्रेशन जिस पर टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है 273.15 केल्विन एंड प्रेशर होता है pressure is equivalent to 1 atmosphere and 1 atmosphere is equal to what? 0.987 bars. Okay, this is the condition. Another term is given is the molality. So इसको समझते हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये कैसा दिया है, what is the meaning of this term. मोलालिटी होता क्या है इसको समझते हैं. मोलालिटी का अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, मोलालिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in kg, right? This is how do we represent solvent का weight किसमें? kgs में. So in this question you are given 0.195 m. अगर हम इसका definition को देखेंगे, so please refer the definition. हमने last मेरा फर्स्ट सीरीज का इस सीरीज का फर्स्ट जो हमारा इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर you will understand these terms of molarity, molality, mole fraction. So the meaning of 0.195 is 0.195 moles of H2S is present in 1 kg of solvent. I hope ये टर्म आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. M का मतलब होता है मोलालिटी इधर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो 0.195 M इस किसका मतलब क्या हुआ? 0.195 moles of H2S is present in 1 kg of solvent, right? So 0.195. So what does it means? So you get the number of moles of H2S, that is your solute. How much? 0.195. And can you calculate the number of moles of water here? So ध्यान से देखेंगे आपके पास 1 kg वाटर उसका बेसिस है. लास्ट में देखा था हमने, यू आर गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg. So in this 1 kg you get 100,000 grams divided by let me tell you, अगर किसी को नहीं पता है तो weight of solvent divided by molecular weight of solvent. This is how do we calculate molecular weight of solvent. So this is the method to calculate it. So weight of solvent आपके पास हो गया 1000 grams. molecular weight of solvent water का होता है 18 ग्राम पर मोल. तो ये यहाँ पर इतना मोल की टर्म्स में आ गया. तो 1000 divided by 18. So how much it is coming? I think it is coming out to be 55.55 moles. Let me calculate this. 1000 divided by 18, it is coming out as 55.55 moles. अभी ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या था. कम टू द क्वेश्चन अगेन. So H2S gas. So calculate the Henry's law constant. So you know the formula for Henry's law already. P is equal to KH into mole fraction. भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन. पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम यहाँ से. P हमें ऑलरेडी पता है 0.987 बार. लास्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे है. P है हमारे पास कितना? 0.987. दिस इज द कंडीशन एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन. ध्यान से देखेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आई मीन एसटीपी कंडीशन. ओके, एसटीपी पर इतना होता है. और अभी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. मोल फ्रैक्शन H2S का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S divided by number of moles of H2S plus number of moles of water, right?
So number of moles of H2S कितना आ गया आपके पास, that you already given to you is this one 0.195 divided by 0.195 plus वाटर का कितना है 55.55. विल कैलकुलेट दिस. चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज लूँगा. पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ. 0.195 प्लस 55.55 इट इज़ 55.745. 0.195 divided by 55.745. So it is coming out to be, just a minute, I'm calculating it. 0.195 divided by 55.745. So it is coming as 0.0035. This is the mole fraction, correct? We need to find what? P is equal to KH into mole fraction. तो KH हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो KH फाइंड करने का सीधा सा मेथड क्या है? KH फाइंड करने का सीधा सा मेथड हो गया P अपॉन मोल फ्रैक्शन. P कितना हो गया 0.987, लास्ट पेज पे है. 0.987 डिवाइडेड बाय 0.0035. डिवाइड कर लो. 0.987 divided by 0.0035. It is coming out as 282 बार. यूनिट का ध्यान हमेशा देंगे. अगर मैंने ये बार में लिया है तो ये भी बार में ही आएगा. अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में लेता तो ये एटमॉस्फेयर में आ जाता. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एंड दीज आर लाइक, एक दो बार आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. I'll share this book in the description. Description में मैं बुक को शेयर कर दूंगा. And anybody who is having any problem can can put in the comment section any specific topic you want to continue. We can do that. And kindly share and subscribe this to your friends, family, anywhere. I want all students to get educated. This is a platform. मैं daily ऐसा videos लेके आऊँगा. आपको घर बैठे ही सारा information मिलेगा. It is a complete guide to you. Kindly follow and subscribe my channel. We are here for all three subjects: physics, chemistry and mathematics. So physics के अलग टीचर हैं, chemistry के अलग टीचर हैं, maths के अलग टीचर हैं. All three subject teachers are completely engaged in it. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 2.7 क्वेश्चन है. हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 power 8 Pascal at 298 Kelvin. Okay. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. मेरी बात समझ आ गई क्वेश्चन की? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं पहले तो. ठीक है. सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है KH करके 298 केल्विन पर. क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है 500 ml में सोडा वाटर में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 CO2. ओके. तो ये प्रेशर दे दिया आपको. चलो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं. विल नोट इट डाउन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.7. जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसको गिवन करके नोट करते हैं. एक तो आपको KH का वैल्यू दिया है, एक आपको P का वैल्यू दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी फाइंड करना है. ठीक है. अब सीधा सा है, सब जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, उसका कैसे, ये क्वेश्चन सॉरी हेनरीज लॉ पर बेस्ड है, उसका कैसे पता चलेगा. तो हेनरीज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन का सीधा सा फंडा होता है, जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो हेनरीज लॉ के केस में KH का वैल्यू आपको या तो दिया जाएगा या फिर पूछा जाएगा. समटाइम्स स्टूडेंट्स हैविंग प्रॉब्लम कि उनको समझ नहीं आता किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है. सो इसके अंदर आपको KH का वैल्यू दिया है 1.67 into 10 power 8 विल नॉट into 10 power 8 पास्कल. ओके. एंड प्रेशर कितना दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर. ये है आपको 2.5 एटमॉस्फेयर. ठीक है. और क्या क्या दिया हुआ है,
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्वांटिटी निकालना है CO2 का। सो क्वांटिटी ऑफ CO2 मीन्स वेट ऑफ CO2, करेक्ट। ये आपको फाइंड करना है। दो कंपोनेंट्स है CO2 एंड वाटर। तो CO2 क्या है, इसके अंदर सोल्यूट है, एंड वाटर इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बना के क्या बनाता है, सोल्यूशन। ये क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। और दूसरा वेट ऑफ वाटर दिया है। अभी ध्यान से देखेंगे, वो हमें दिया है 500 ml। पानी के केस में वेट और वॉल्यूम सेम होता है बिकॉज उसका डेंसिटी 1 होता है, करेक्ट। सो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए आपके, 500 डिवाइडेड बाय 18। सेम मेथड, 500 डिवाइडेड बाय 18, so it is coming out as, let me calculate, 27.77। ओके, नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट मोल। हाँ, सो एक और चीज क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में ही आपका पास्कल में गिवन है, एटमॉस्फेयर में, तो इन दोनों को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो कन्वर्जन होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। मोस्टली बुक्स में 10⁵ ही लिखा रहता है सिर्फ, तो आप डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं, बट आई ऑलवेज टेक द एग्जैक्ट वैल्यू। सो मेक इट अ हैबिट कि आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही लेना आना चाहिए। इट इज 2.75 इंटू 10⁵। आई होप दिस इज क्लियर इन टर्म्स ऑफ पास्कल। तो हमने क्या किया, 2.5 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 2.75 इंटू 10⁵। वेरी गुड। नाउ अगेन वी नो दैट P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। हमें पता है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी P कितना है मेरे पास, 2.75 इंटू 10⁵, ओके, इज इक्वल टू KH कितना है मेरे पास, 1.67 इंटू 10⁸। KH हो गया, इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, CO2। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आगे चलते हैं। अब ये न्यूमरेटर वाला इधर डिनोमिनेटर में आते हैं। फॉर सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन आई विल राइट इट हियर, 2.75, ओके, into 10⁻, let me check what is that, 5 divided by 1.67 into 10⁸. 1.67 into 10⁸ is equal to what, is equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of CO2 plus number of moles of water। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, CO2, और CO2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। मेथड हो गया। ये 5 है, ये 8 है, तो यहाँ पर 3 बचा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको इसके अंदर वेट फाइंड करना है, राइट। मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 आप फाइंड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। M ऑफ CO2 कितना होता है, 12 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, आई एम राइटिंग इट 2.75 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻। देखो भाई 3 बचेगा, आई एम राइटिंग 3। कैलकुलेशन साथ साथ करते जा रहे हैं जितना भी हो जाए। वेट ऑफ CO2 आपको फाइंड करना है अपॉन 44, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 44 प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है, 500। देखो 500 गिवन है इधर, मिस्टेक्स नहीं चाहिए, अपॉन 18 दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एक्चुअल में 27.7। तो अब सब चीज है, एक चीज अननोन है दैट यू कैन कैलकुलेट, इसके अंदर पूरा सॉल्व करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, 2.75 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2। मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये कितना है, 27.77 है ना, 20.7.77, तो आ जाएगा वेट ऑफ CO2 प्लस 27.77 इंटू 44। क्या ले लिया आपने, LCM 27.77 लिख के, ये क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे।
So आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे W of CO2 will come out to be, let me check it, कितना आ जाएगा ये, just a minute, I'm calculating it. So what we'll do, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसके लिए जल्दी सॉल्व हो जाएगा. Just a minute, okay, I'm calculating it. So the solution for this is 1.8454 1.854 ग्राम आना चाहिए. यू कैन टेली फ्रॉम योर बुक, आपके टेक्स्ट बुक के बाद में ये सब लिखा है. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे. आज हमने बुक का ये पोर्शन कंप्लीट कर दिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहिए.